हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ATT ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਗਿਆਨਮ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ATT ਦਾ ਬੈਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ATT ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਚ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ AP ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? AP ਸੀਰੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। ठीक है जी। सो गाइज, A इज द फर्स्ट फॉर्म। A की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਫਾਰਮ। ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੈ A1, A2, A3 ਐਂਡ A4 ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ A ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਆਰ A। ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? A। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? D, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A2 minus A1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A3 minus A2, A4 minus A3। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼, ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज लिखा है ना, AP सीरीज है ना जी। वो जी सीरीज होगी पर्टिकुलरली AP होगी। AP सीरीज में जिदा कॉमन डिफरेंस की होता है जी? सेम होता है जी, है ना। A इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस किवें लावांगे जी? A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3। चलो जी, आप स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक जी एग्जांपल ले रहे हैं जी। ठीक है, सो दैट थोड़ा पता लग जाए जो भी मैं डिस्कस कराया हूं ਉਹਨੂੰ मैं की कहना चाह रहा जी। ठीक है जी, आप स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल तो, बेसिक एग्जांपल तो स्टार्ट करते हैं जी, राइट। चलो जी। सो मेरे को एक एग्जांपल है जी फॉर द AP, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे को, फॉर द AP। ठीक है, इतने ऑलरेडी दसा गया कि एक AP है। फॉर द AP 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, अगेन -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अपने इस सिर्फ ये दसना है कि फर्स्ट टर्म की है जी, फर्स्ट टर्म की है जी। अपने ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ਤੇ कॉमन डिफरेंस दसना है। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ही जिस तरीके नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? 3/2। ठीक है जी। पहली टर्म मेरी की होगी जी 3/2। ये मेरा फर्स्ट आंसर है। रही गल कॉमन डिफरेंस की, बेटा D हुंदा ना जी, वो A2 minus A1 आऊगा जी। सो A2 कितना आया जी मेरा? 1/2 आया। A1 कितना आया जी मेरा? 3/2 आया जी। कितना आया जी? 3/2 आया। सो इन्हों को सॉल्व करांगे जी। 2 आ गया जी, और की आ गया जी एलसीएम कितना आ गया जी मेरा? 2 आ गया जी, राइट जी। मेरा एलसीएम 2 आ गया जी, -1/3, यानी कि -2/2 आ गया। सो मेरा और कितना डिफरेंस आ गया जी? -1। सो -1 मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया जी। फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई? 3/2 आ गई। सो जो मान लो अपने आगे फर्दर चेक करना है, सपोज करो D चेक करना है अगेन, सो मैं A3 minus A2 करके दिखाऊंगा जी। ठीक है, सो -1/2 -1/2 that is equal to -2/2 again equal to -1। सो ये सीरीज आपने वैसे तो लिखा ही होया है, कहना फॉर द AP, यानी कि क्लियर है कि ये सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, पर फाइंड आउट किवें करें जस्ट मैं एक्सप्लेन किया, बिकॉज बहुत ही बेसिक जा क्वेश्चन सीगा जी, राइट। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन सी।
ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 10th ਟਰਮ। ਚਲੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 10th ਟਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦੇ ਥਰੂ मतलब कि एक दो टर्म्स दे देने हैं, उस तो बाद 10th टर्म पता करने को कह रहे हैं जी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। ठीक है जी, अपने 10th टर्म फाइंड आउट करना है ते जिहड़ी आपां नूं सीरीज गिवन है जी, कादा 10th टर्म फाइंड करना है जी 2 7 12 एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो गाइस 10th टर्म पता कर लेंगे अपने। सो क्लियर है जी। सब तो पहले तो आप सारा चीजा लिखांगे जी। ए मेरा इत्थे कितना दे रखा है जी 2, गिवन की है A2 है। सो व्हाट अबाउट D, A2 माइनस A1। सो मैं इत्थे लिखूंगा जी 7 माइनस 2 कितना आ गया जी 5। अच्छा केड़ी टर्म पता करनी है जी 10th, यानी कि n मेरा कितना हो गया जी 10 हो गया। ठीक है जी, n मेरा कितना हो गया जी 10 हो गया। क्लियर है जी। सो गाइस 10th टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला की है, यानी कि an का फार्मूला की है। सो an का फार्मूला है जी a प्लस n माइनस 1 d। सो nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला जी, किहड़ा टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला nth टर्म। सो आप उरे n की वैल्यू कितनी फिल करांगे जी 10। a कितना हो गया जी 2 प्लस 10 माइनस 1 d मेरा कितना हो गया जी 5। सारी वैल्यूज दित्तियां हुई सी, जस्ट आपने पुट करिए ने जी वैल्यूज, है ना। सो a 10th का आपने फाइंड करना है 10th नंबर का, है ना। सो a यानी कि 2 कितना हो गया जी 9, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, 45 दो जोड़े जी कितना आ गया 47। सो गाइस 10th टर्म कितनी होगी जी 47। 10th टर्म कितनी होगी जी अपनी 47, राइट। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर द 10th टर्म कितनी आ गई जी 47। क्लियर है जी ये चीज। ओके ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3rd ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7th ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਓਵਰਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ एग्जाम च रह सकता है, राइट। सो मैं 3rd क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है डिटरमाइन द एपी। मान लो कि आपने एक एपी दसनी है, क्वेश्चन नंबर 3rd है जी डिटरमाइन द एपी। ठीक है जी, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ AP ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ 3rd ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 5 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 7th ਟਰਮ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 9। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ AP ਦੱਸਣੇ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। सो भाई सब तो पहली गल तो 3rd टर्म दी है, तो मैं लिख सकता a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये अपना 1 आ गया जी। क्लियर है जी, a प्लस, क्योंकि 3rd टर्म दी है। क्लियर है जी। सिमिलरली अपन 7th टर्म दी है, तो मैं लिख सकता जी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया जी। हाँ जी क्लियर है जी। इतना मैं लिख रहा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ सोल्यूशन। क्लियर है जी। a प्लस कितना हो गया जी 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 हो गया जी। सो गाइज हम आप सॉल्व करांगे। एक तरीके का लीनियर इक्वेशन बन गया जी। चलो जी माइनस माइनस माइनस, क्योंकि एक दे साइन चेंज हुए तो सारे दे चेंज होंगे। -4d इज इक्वल टू कितना हो गया जी -9 -5 -4 हो गया जी। सो d की वैल्यू कितनी आ गई जी -4 अपॉन -4 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी क्लियर है जी। फटाफट दसो d की वैल्यू 1। क्लियर है जी। हाँ जी d की वैल्यू 1 क्लियर है जी। सो जे आप गल करिए हुण d की वैल्यू 1 मैं चाहे तो इक्वेशन 1 च पुट करा जी, चाहे इक्वेशन किस पुट करा जी 2 च पुट करा। सो गाइस आप 1 च पुट कर रहे हैं क्योंकि अपन a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू 1 पुट की है जी। जब मैं d की वैल्यू 1 पुट की और 2 into 1 आ गया इज इक्वल टू 5। क्लियर है जी। सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई।
ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ D1 ਹੈ A3 ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮੇਰੀ 3 ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ, 4 5 6 7 and so on। clear है 3 4 5 6 7 and so on। this is the required AP। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ AP ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਐਵਰੀਬਾਡੀ। 4th ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4th की कह रहे हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4th की कह रहे हैं जी, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल by 3। how many 2 digit numbers are, how many 2 digit numbers are divisible by 3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 2 digit numbers ਨੇ ਜਿਹੜੇ divisible by 3 ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ 2 digit number ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12 ਆ ਗਿਆ। 9 ਤਾਂ 1 digit number ਹੈ, 12 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗੇਨ 15 then 18। ਸੋ ਲਾਸਟ वन इज 99। बोलो जी लास्ट वन इज 99। सो एक तरीके की AP बना ली जी। A मेरा की हो गया जी 12 हो गया, D मेरा की हो गया जी 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3। हाँ जी दैट इज इक्वल टू 3। सो AN की हो गया जी लास्ट नंबर मेरा की हो गया जी 99। सो अपने पूछा हाउ मेनी का मतलब होंगे वी हैव टू फाइंड N। साने N पता करने हैं जी, ठीक है। सो गाइज ए nth टर्म का फॉर्मूला की है जी a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। सो क्लियर है जी। ए एन कितना हो गया 99 इज इक्वल टू a मेरा कितना जी 12 है, n आपा ने फाइंड आउट करना है, d मेरा कितना है 3 है। सो क्लियर है जी 87 आ गया, 99 चो 12 घटाते जी 87 आ गया, n माइनस 1 3। क्लियर है जी। हुण इथों कितना आ गया जी 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। n माइनस 1 इथे लिख रहे हैं 87 चो 3 डिवाइड कर दो जी, डिवाइड बाय 3 n माइनस 1। सो मैं इधर लिख रहा जी, काफी नीचे चला गया। सो कितना आ जाएगा जी डिवाइड करके पहले 2 से गया फिर 9 से गया जी इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई जी 30। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are divisible by 3। so नंबर कितने n कितना आ गया जी 30। क्लियर है जी। सो कितने नंबर ने जी अपने को 30 नंबर ने। ओके क्लियर है जी। सो एक क्वेश्चन होर करते हैं जी आप। सम दा फॉर्मूला होंदा जी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द, एक मिनट पहले मैं इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन। आई होप कि थोड़े क्वेश्चंस क्लियर है, पर ये बेसिक क्वेश्चन ने भी ये ना समझो कि आप सिर्फ इन्ना करके ही चैप्टर खत्म कर देंगे। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस कि थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं जी कि आप हर प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करांगे जी ऑनलाइन बैच दे विच, वो भी पंजाबी माँ बोली च। हर टीचर अपने सब्जेक्ट नूं माँ बोली विच ही टीच करेगा जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 22, फाइंड द सम ऑफ 22 terms of the AP, 22 terms of the AP, 22 terms of the AP, 8, 3, -2 and so on. Clear है? Find the sum of the 22 terms of the AP 8, 3, -2। ठीक है जी। सो गाइज ए मेरे को उरे कितना हो गया 8 हो गया जी। जी मैं डी की गल करा जी 3 माइनस 8 कितना हो गया जी -5 हो गया। 3 माइनस 8 कितना हो गया जी -5 हो गया। n की वैल्यू मेरे को कितनी होगी जी 22। द सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑलरेडी पता है कि n अपने को कितना जी 22। सो हुण अपने सम का फॉर्मूला पढ़िया होया जी
ठीक है जी। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ n/2, ठीक है जी, n/2 सिंपल n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 d। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ n ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਜੀ 22/2 2a कितना हो गया जी 2 × 8 n कितना जी 22 अगेन -1 d कितना जी मेरे को -5 11 आ गया जी। मैं इतने लिख रहा जी, चलो एक स्टेप और लिख लेना 11 16 प्लस कितना आ गया जी 21 21 से 5 मल्टीप्लाई किया जी -105 आ गया। चेक करो 21 ਨੂੰ -5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ -105 ਆ ਗਏ। क्लियर है जी -105। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ -105 ਤੇ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -89 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 9 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ 979। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ the sum of the first 22 terms because वो नेगेटिव तो शुरू हो गया ना, the sum of the first 22 terms कितना आ गया जी -979। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਹਰੀ ਅਪ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਨੂੰ ਬੈਚ ਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।